Okay, the second part again, let me explain you. Question was this. Do you remember the question? ये question था. When it is moving in anti-clockwise direction, its velocity was 2i cap plus 2j cap. In which quadrant it was? This was discussed in the class, earlier previous class. I think yeah, ये था ऐसा. Anti-clockwise में answer coming was fourth quadrant. Now, when the direction is clockwise, then answer will be second quadrant. Direction of motion in the second quadrant will be like this. So both the components are positive, I cap and j cap. दोनों component positive. So that is about the velocity. And position vectors के लिए भी you have to see the position. Velocity के लिए we have to see the direction of motion. All right. Clear? So this was done. And dot product may suppose, can you tell me dot product will be, suppose if mod of vector A is 3 and mod of vector B will be 4. So what will be the range of dot product? कहाँ से कहाँ तक dot product हो सकता है बोलिए? A dot B will be maximum how much? कितना रेंज हो सकता है? 7 maximum. No, I am asking dot product. I am not asking the plus. ये 7 maximum तो A plus B का होगा. 12 हाँ. If I ask you A plus B less than 7 or equal to 7, dot product में क्या आएगा? Maximum 12. इनका multiply कर दो. 3 into 4 that is 12. And less greater than or equal to -12. -12. -12 आएगा because cos theta. Whereas in addition it will be 1. It will be greater than or equal to 1 and less than or equal to 7. उसमें add and difference करना है, इसमें multiply करना है. तो multiply किया 12 and again when cos theta is 180 degree, time it will be -12. In between 0 will also come. Clear? Dot product will be between two different physical quantities. Like one is force, other is displacement. Whereas vector addition will be with the same physical quantities, between same physical quantities. इसमें different है ना? Same physical quantity का multiply का कुछ आएगा नहीं है ना? अगर मैं बोलूँ f dot f है ना? तो we are not going to get any other physical quantity. Force का dot product हो जाएगा ना? Of course, dot product can be possible with the same, but generally we see that different physical quantities are there, and altogether third quantity is also different. है ना? ऐसा होता है. But we can multiply two vectors. A dot A will be what? A square. Angle will be 0 between them. So dot product was then all the points were covered. And ये था क्या? ये हो गया था ना? This was done. 0 कब आएगा? 90 डिग्री पर. 12 कब आएगा? 0 डिग्री पर. और -12 कब आएगा? 180 डिग्री पर. तो आंसर्स दिस आई थिंक वी डन. यहाँ पे है, देखो इसका सॉल्यूशन. We are done in the class. This one, and after that dot product was completely over. है ना? A dot B. ये पूछा था मैंने. What is the answer of this homework? बोलिए. इसका क्या आंसर है this homework? Quick answer. Coefficient multiply करना है. I के इसमें तो I है नहीं. A dot B 1 into 0. Second वाले में I is not there, तो उसका 0 रहेगा. 2 into 2 into 3 into -3. It is 4 minus 9. That is -5. Got it? What about this guy?
इसका आंसर क्या है? बोलिए, इसके क्या आंसर आ रहा है? क्विक आंसर दीजिए। 32. हाउ मच? 32. No, 32 you are telling, or 52 you are telling? 32. 32. Any other answer? 32 is okay. Everybody is done. Is there any other answer? Others are not doing. Only one answer I'm giving. 31 are इसका आंसर. 31 is the right answer. इतने दिन का गैप था. You're not doing homework. 31 is the answer, not 32. मिली mistake मिली? Did you get the mistake? क्या क्या Yes, mistake sir. आ रही थी? मिल गई यहाँ सर. पर I is 1 और इधर I का कोएफिशिएंट 5 है. तो 1 and 5. यहाँ पे sequence is changed. You have to make the proper sequence 5I cap plus 4J cap plus 6K cap. Now coefficient of I cap is 1 year, 5 year, 1 into 5. J ka 2 into 4 and 3 into 6. So it is added together will be 31. Clear? So you have to be careful. Sequence may be changed. So you have to remember coefficients of I will be क्या formula था? AX BX plus AY BY plus AZ BZ है ना? तो I के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, X कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, Y and Z and will be added together if all are plus. All right. Be careful. Sequence are generally changed in NEET examination particularly. Okay, chalo. Moving on to the next one. ये C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, क्यों नहीं का था ये? If two vectors are mutually perpendicular, their dot product will be 0. And using that relation, C की वैल्यू 9 by minus 9 by 2 आ गई थी. This was done in the class itself. And I think other question was in homework. No, this was okay. ठीक है. This was done in the class. And dot product should be 0 if two vectors are mutually perpendicular. ठीक है. तो -9/2 पैरेलल में उनके कोएफिशिएंट के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, उससे हम we can do it. And then angle निकालने का we have seen angle was calculated by the dot product. This already we have done. This question was done in the class. And if one of the vectors is axis x-axis, जैसे x-axis है, one vector is given with other axis, with any of the axis they are asking. So x-axis को vector b लेके solve कर सकते, same method, or simply tan theta निकाल के then we can find out sin theta cos theta. Because this was given 2I cap plus 3J cap, 2 will be along the x-axis, 3 will be along the y-axis. तो tan theta आ जाएगा, tan theta से cos theta आ जाएगा, tan theta is 3/2. Okay, or you can just make the right angle triangle and find out the hypotenuse also. Then you can find out cos, tan, sin, जो भी चाहिए. Whatever the options are given, you can just look for the right option. Clear? So this part also it was done in the class. Let's continue further. So that component also we have seen, है ना? तो component निकालना है तो ऊपर dot product आता है, and denominator में what we do, in the direction of which vector, magnitude of that is divided by that magnitude of the vector in which we have to find out, because component of A along the B is A cos theta. A cos theta ko you keep it one side, and other terms you can send it to the denominator. Right hand side
in numerator it has to be a dot b, and denominator में the magnitude of that vector in which we have to find out the component, in the direction in which we have to find out the component. Along the b चाहिए तो b से multiply करो, along the a चाहिए तो a से divide करो, along the a चाहिए तो a से divide करो, along b we want, we have to divide by b. So you have to remember this, because one question is there in the chapter 4, question number 22. First part we already did it. Along this vector it was required component, तो ऊपर a dot b और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया था. Clear? So this was done, and we were doing the cross product. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट is a cross b is equal to magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of angle between both the vectors into n cap. N cap is the unit vector perpendicular to the plane of both the vectors, and it is given by right hand rule. If a is first, a cross b hai, keep your fingers along a such that palm should be towards the second vector, and if you turn your fingers this side and thumb will be pointing upward. दोनों वेक्टर्स के टेल ज्वाइन कर लो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स रखो such that curling should be towards the second vector. In other words, palm should be towards the second vector. When you curl your fingers, it should go. मतलब ऐसा समझ लो, A को पुश करना है, राइट हैंड रखा इधर, A को पुश करना है तो B की तरफ जाए वो, है ना, ऐसा सोच लो. तो thumb will be upward. In other words, if you watch it closely, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, है ना, A को A cross B, you have to curl your fingers towards B. You are moving anti-clockwise. If it is anti-clockwise, vector will be upward. If I ask you B cross A, तो B से A की तरफ कर्लिंग करनी है, फिंगर्स आपको B की तरफ रखनी है पहले, और A की तरफ कर्ल करके ले जाना है. palm should be towards A, then only curling is possible towards A. तो B से A की तरफ जा रहे हैं, तो we are moving anti-clockwise, I mean clockwise. क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी, इनवर्ड या डाउनवर्ड आएगी. B cross is this side, A cross B is upward. So both are opposite vectors, so they cannot be equal. A cross B will never be equal to B. In general, A cross B and B cross A are not equal. They are in opposite direction. Therefore, they are not equal. Both the vectors are in opposite direction. In this diagram, A cross B is directed upward or B cross A is directed downward. Clear? Fingers का मैंने बताया था. Either you can follow this. A की तरफ अपने fingers पहले रखी, बाद में curling करना है B की तरफ, thumb will indicate A cross B. Or you can follow the right-handed screw rule. अगर screw को आप इधर turn कर रहे हैं, it will go upward. A से B की तरफ turn कर रहे हैं, it will be going upward, and that will be the direction of A cross B. B cross A उल्टा घुमाते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो खुलता है वो, ओपन अप, मतलब इट जस्ट कमिंग आउट. इनफैक्ट कोई भी आप लेंगे, कोई भी नट बोल्ट या स्क्रू वगैरह जो लेते हैं ना, if we turn it clockwise, it go inside. If you turn anti clockwise, it comes out. कभी भी आपको कोई नट बोल्ट खोलना है, keep it in mind. I am telling you technical point. कोई भी नट बोल्ट कहीं भी खोलना है आपको, नट ऐसे स्क्रू होते हैं, स्क्रू रहते हैं या नट बोल्ट रहते हैं, अगर आप उनको टर्न करते हैं राइट साइड क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, तो 99% चांसेस है कि वो टाइट हो, मतलब उसको क्लॉकवाइज घुमाने से वो इनवर्ड मूव होता है, टाइट होता है. इनफैक्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ओपन होता है, आउटवर्ड मूव होता है, ओपन होता है. चाहे वो यू कैन टेक द लिड ऑफ द बोतल आल्सो, कोई भी बोतल आप लीजिए, है ना, उसको आप देखिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाता है, मतलब टाइट होता है वो, अपवर्ड जाएगा या इनवर्ड जाएगा. अपवर्ड मतलब इट इज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग टाइटेड. ठीक है,
तो यहाँ से देखो ए से बी की तरफ टर्न करना, तो इट इज गोइंग इनवर्ड। एंड अगर किसी वॉल में आप घुमा रहे हैं या वुडन में घुमा रहे हैं उसको, तो अंदर जाएगा, टाइट हो जाएगा वो, और उल्टा बी क्रॉस ए में ओपन हो जाएगा, बाहर बैकवर्ड आएगा, ओपन होगा एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? या फिर मैंने आपको ये बताया था, दिस इज द सिंपल मेथड है ना, फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो एंड palm should be toward the second vector, therefore when we curl the finger, the fingers को हम turn करेंगे, तो it should go toward the, all the fingers should go toward the second vector, so it will be a cross b. So thumb indicates the cross product of first and second vector. यहाँ पे b cross है, first में b आ रहा है, sequence में first is b. Keep your fingers, all the fingers toward b. Palm should be toward this vector, so that when you curl it, जब आप फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ लाएंगे, तो बी क्रॉस ए, थंब इज गोइंग डाउन, तो बी क्रॉस ए इज डाउनवर्ड, थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, थंब वहीं रहेगा बट पॉइंटिंग will give you b cross a, pointing of direction of b cross a will be downward in this case. Clear? To comfortable with this, you should be, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो वेक्टर सी होता है ना, ये वाला देखो यहाँ पे, लेट मी टेल यू व्हाट प्रॉब्लम यू फेस इन द डिफरेंट चैप्टर व्हेन यू अप्लाई। उसमें क्या होता है कि जैसे एक वेक्टर यहाँ पर है और दूसरा सपोज साथ में नहीं है या कहीं और है, तो उसको पहले साथ में ले आओ, सॉरी ऐसे, और इस पॉइंट पे पूछेंगे a क्रॉस b एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट आल्सो इट विल बी अपवर्ड ओनली, दिस पॉइंट इट इज a क्रॉस b अपवर्ड, एट दिस पॉइंट आल्सो अपवर्ड, यहाँ कहीं पे पूछेंगे तो यहाँ भी अपवर्ड रहेंगे, इफ दे आस्क एट दिस पॉइंट व्हाट इज a क्रॉस b, इट विल बी अपवर्ड इन एनी पॉइंट इन दैट प्लेन, a cross b is upward, we know the vector is shifted, यहाँ पे तो you are comfortable a cross b upward, if I ask you at this point also it is a cross b upward, because generally point remains somewhere else, जैसे हमें फील्ड निकालनी है किसी चार्ज की, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के टाइम क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, दैट टाइम टू गेट कंफ्यूज, आपको पूछा यहाँ पर है, तो नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गेट a cross b here itself, it is coming upward, so here also it will be coming upward, will be going upward, vectors can be shifted, so points are changing at different points, we want to find out the cross product, so every case in whole plane they will be upward, magnitude so we can find out easily, a b sin theta, a will be first quantity, b will be second, unka magnitude a and b, दो vector quantities का, are you there, are you able to hear me, just Yes, let me sir. confirm, हाँ, तो ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोकेशन ऑफ द थर्ड वेक्टर चेंजेस, पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, तो you find out here itself and then you can shift it, यहाँ पे है तो तभी भी c will be upward, यहाँ पर पूछा है तो यहाँ भी upward रहेगा, because we are going to apply in different chapters, so therefore I am giving you ample time to think about this, raise your doubts and ask me, ठीक है? ठीक है, डायरेक्शन में कंफर्टेबल, एक होमवर्क भी था आई थिंक है ना, बताइए उसका क्या आंसर है, तो दिस वाज डन, ये भी मैंने आपको बोला था, you can take the pick of this, और एंटी क्लॉक, देखो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज में दैट ए क्रॉस, दैट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड हो रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, फिंगर्स आपको ऐसे टर्न करनी पड़ेगी, कर्लिंग सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर्ल की जाती, तो यहाँ पे यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, सीन फ्रॉम द टॉप, क्लॉकवाइज में उनका क्रॉस प्रोडक्ट डाउनवर्ड आता है, एंटी क्लॉकवाइज में जनरली अपवर्ड आता है, अगर आप ऑब्जर्वर की पोजीशन पे, मतलब ऑब्जर्वर इधर से देख रहे हैं, सपोज यू आर ऑब्जर्वर, तो ए क्रॉस बी में यू हैव टू कर्ल योर फिंगर दिस साइड, you are in other words you are moving anti-clockwise, तो एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड या आउटवर्ड, क्लॉकवाइज में ऐसे मूव करना पड़ेगा, सीन फ्रॉम द टॉप इट इज क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज में इट इज गोइंग डाउन, so this was the question given to you,
vector A is horizontally away from you, or is the north B है, and vector B is upward. A this side, B is upward. तो A cross B, fingers को इधर रखो, B की तरफ, B should be visible to palm so that when you turn the fingers towards B, curling of fingers should be pointed towards B. तो A cross B, क्या आंसर आ रहा है इसमें बोलो? right, साउथ. ऐसा सिचुएशन है कुछ. राइट मीन्स ईस्ट, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपके राइट में क्या है? ईस्ट है, तो आंसर विल बी टुवर्ड्स ईस्ट. जब नॉर्थ दे दिया है तो वी हैव टू बी आइदर डायरेक्शन आएगी या अप या डाउन, ऐसा कुछ आ सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है ना. तो शैल आई मेक द डायग्राम? देखो, डू आई हैव द डायग्राम? देखो ऐसा कुछ आएगा. जो मैंने बनाया था, दिस इज योर ईस्ट एंड वेस्ट, और ये अप और ये डाउन. दिस इज अप. नॉर्थ नहीं है उधर. नॉर्थ एक्चुअली, नॉर्थ इज अप डाउन नहीं रहता है. अगर आप हॉरिजॉन्टल खड़े हैं तो ऊपर होता क्या? नॉर्थ ऊपर की तरफ जाता, नेवर. तो नॉर्थ आएगा इस तरफ, साउथ ऐसे आएगा. एक्चुअली 3 डायमेंशनल जब बनाते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ, ये साउथ आएगा, ये डाउन आएगा. तो वेक्टर इज दिस साइड, you are facing towards north. Vector B is upward. ये 90 डिग्री एंगल है. एंगल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर. फिंगर सारी इधर रखो, palm should be upward so that when you curl second vector it should be touching to second vector. थंब इधर आएगा आपका, थंब इधर आएगा ना, राइट टर्न का थंब. फिंगर्स इधर जाएंगे, पाम ऊपर की तरफ आएंगे. क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको कॉन्फिडेंटली आ जाना चाहिए अभी तक, इतने एग्जांपल लेने के बाद. कैन यू, डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट स्टिल? बोलिए. डायरेक्शन में Sir, you can should you be show able the to. previous one again, please? अच्छा, ये प्रीवियस वन का ये कौन सा था? एक मिनट, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? Yes, sir. इसमें भी देखो मैंने टेंटेटिव डायग्राम बनाया, थोड़ा सा रफ डायग्राम देखते हैं क्या. एक मिनट, देखो क्या था इसमें. ए हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम यू, फिंगर सीधे रखनी है, एंड बी इज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स योर लेफ्ट, बी इस तरफ है. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? सभी फिंगर्स को इधर रखो, पाम इधर होना चाहिए, थंब ऊपर आएगा. Yes, sir. Okay. अप था ना, अप इसमें आंसर था अप. इसमें आप पाम इधर आनी चाहिए, पाम, फिंगर सारी इधर जानी चाहिए, थंब ऑटोमेटिकली इधर जाएगा. राइट हैंड का, वी आर always you have to take the right hand, है ना, because it is given by right hand thumb rule, है ना. So even if you are lefty, you have to take the right hand, otherwise things will not be right. All right. तो ये हो गया डायरेक्शन. अभी डायरेक्शन में I think we don't have to give much time. This much is enough. Now ये रूल भी मैंने बता दिया था राइट हैंड के कैसे फॉलो करना है. तो दिस वाज आल्सो शोन टू यू. दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर लो टेल टू टेल, एंड देन फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो. Palm should be toward the second vector so that curling should be going this side. Thumb will be giving you A cross B. So these 4 points, if you remember, so things will be easier. Okay, moving further now. Okay, now magnitude देखते हैं. Let us see the magnitude. A cross B का magnitude क्या आएगा? Magnitude ये तो सब पॉजिटिव है ऑलरेडी. n का मॉड लेना है. n का मॉड कितना होगा बोलो? मॉड ऑफ n will be what?
n का mod 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, n indicates the unit vector, so this will become 1. So a cross b is given by ab sin theta, और b cross a डाउनवर्ड था, ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे हम, डाउनवर्ड था, तो उसका n डैश कैप ले लेंगे, उसका भी mod 1 आ जाएगा, तो ये बी ए साइन थीटा हो जाएगा, इसको हम ए बी साइन थीटा. तो मॉड्स आर इक्वल, इनफैक्ट दे देमसेल्व्स आर नॉट इक्वल, बट उनके मैग्नीट्यूड से इक्वल है. ए क्रॉस बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू बी क्रॉस ए. दे आर अनइक्वल बट मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. क्लियर? बिकॉज मैग्नीट्यूड में डायरेक्शंस आर जस्ट रिमूव्ड, one was upward, other was downward, so but magnitudes are equal. Clear? So a cross b is equal to b Yes, cross sir. a. तो लेकिन देखो, अगर if I ask you, okay, is it okay? देखो यहाँ पे देखो, going back to the previous diagram, a cross b is not b cross a, but if I write like this, देखो यहाँ पे देखो, a cross b is minus of b cross a. This statement is okay. Yes, this Yes, is sir. okay. b cross a is downward, but इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, इसको अगर माइनस करेंगे तो टर्न हो जाएगा, नेगेटिव बना देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा. तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए इज अपवर्ड एंड विच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. अगर वन ऑफ द इज डन माइनस, तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. ये माइनस हो गया तो ये भी ऊपर आ जाएगा. तो इफ यू डू माइनस, इफ वी put the sign minus sign across any of them, then both will be equal. इसको हमने नेगेटिव वेक्टर बना दिया माइनस करके, तो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. इफ यू वांट टू चेंज द साइड्स, कम्यूट करना है अगर आपको, इट इज नॉट कम्यूटेटिव है, इट इज नॉट कम्यूटेड, वी कैनॉट कम्यूट, वी कैनॉट शिफ्ट ए एंड बी. अगर ए को इधर लाना है, बी को इधर, तो माइनस लगाना पड़ेगा. If you want to change the sides, you can do it, but minus you have to put in front. But mods are equal. इसका mod और इसका mod equal है. Magnitude मतलब in other words, this length are equal. जितनी लेंथ ही होगी उतनी लेंथ ही होगी. Magnitude में we get down in length. ठीक है? So they are equal. All right. So let me ask you. Okay, यहाँ भी मैंने repeat लिख दिया है. तो magnitude of any vector is any cross product will be n will go. है ना? ये 1 हो गया ना. So now my question is this. These are the important easy questions है ये. If a cross b a mod is equal to √3 times of a dot b, then find theta. What is theta? Theta is the angle between a and b. तो quick answer, इसको solve कर लीजिए. Do it here itself. Similar question I'll give you in homework. 60. Okay, angle coming is 60. So just complete everybody. 60 angle is the coming first answer. आ रहा सबका 60. ओके, लेट्स डू इट. देखो इसको ए क्रॉस बी अभी हमने सीखा कितना होता है, ए बी साइन थीटा. तो राइट ए क्रॉस बी की जगह ए बी साइन थीटा लिखेंगे. √3 as it is, और a dot b is what earlier we have seen, डॉट प्रोडक्ट में cos आता है ना, ए बी cos थीटा. तो ये ए बी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा को शिफ्ट कर दीजिए इधर. cos theta, bring it here. Sin theta upon cos theta is √3. It means tan theta is equal to √3. Sin upon cos is 10. तो therefore theta कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. ठीक है? तो दिस वाज क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चन. दोनों प्रोडक्ट को यूज किया हमने, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले भी है पुट इट,
and solve it for theta. Clear? No problem here up to here. Why do write magnitude? यहाँ पे magnitude लिखना जरूरी है. Yes, because this, if you don't write magnitude, this side direction will be there. This is the right side scalar quantity है, ये vector quantity है. So both the quantities cannot be equated. Vector quantity cannot be equated with the scalar. Therefore, you have to make it scalar quantity by taking the magnitude. Cross product may always you will find it should be magnitude. Direction should be removed. Okay, no problem here. So some more questions, similar questions you are supposed to do. देखो जैसे ये है. Can you do this question? Second one. Next one, in fact, ये वाला. बोलिए इसका कितना आंसर आ रहा है? half, Sin theta half आ रहा है. Okay, answer coming is half. Sin theta निकालना है. Where theta is the angle between A and B. पहले थीटा निकाल लो, इससे कितना आ रहा है थीटा. थीटा फाइंड आउट कर लो, इससे 30 डिग्री आएगा है ना थीटा. तो sin 30 विल बी 1/2. ठीक है. सिमिलर क्वेश्चन जैसे ये यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 1/√3 है, तो tan theta will be 1/√3, theta will be 30 है ना. तो sin 30 is half है ना. Okay. Do we have the solution? Yes. देखो. Clear? Can you see it? Same method again. And no problem. यहाँ पे 2 है देखो इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन. A cross B का mod is 2 times of A dot B. Find the value of sin theta. This is homework problem. So note down these questions. Direct questions हैं, easy questions हैं. So this is, you can see whole thing together. done, sir. Anybody has any problem in this? If somebody is finding the difficulty, how we are doing it, just you can ask. ये होमवर्क प्रॉब्लम है, लास्ट वाला नोट कर लीजिए इसको. विल डिस्कस, सॉल्व करके भेजिए इसको, देखते क्या आंसर आता है sin theta का. Now we'll see some more points related to vector product, also called cross product. Okay, so let's see further. एक ये भी क्वेश्चन है देखो है ना, जो अभी हमने बिगनिंग ऑब्जेक्ट दिया था, चेक पॉइंट आपके लिए, किसका क्रॉस का, क्या क्रॉस का. यस, दिस इज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर C, this is also homework. C and D has the magnitude 3 and 4. What is the angle between C and D if magnitude of vector product C cross D is 0, 0 and 12?
ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, कुछ इशू है? नहीं, ठीक है। बोलिए। डन। Yes, sir. Tomorrow we will start the new chapter, motion in plane, two-dimension motion, projectile and circummotion. We'll start tomorrow. Two-dimension motion is nothing but a combination of two one-dimension motion. Along the x-axis, we'll find out parameters along y-axis. Y-axis will be vertical axis, where acceleration due to gravity will be acting. Along the x-axis, no acceleration is there. In that, velocity remains constant. And we'll join both, so we'll get the results of two dimensions. Okay, तो ये हो गया, noted. Done. All right. देखो अभी अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं भूल गया था आपसे पूछना। एक मिनट। Okay, this is an important question. Can somebody solve it and tell me the answer? इसका find the value of vector A dot है यहाँ पर A cross B. Vector A dot A cross B. If theta is the angle between both the vectors. Can anybody tell me the answer? I'm giving you just 1 minute to think about this. Then it will be converted into homework. Zero. Sorry, come again. Sir, zero. Okay, first answer coming is 0. Any other answer? How 0? Sir, A cross B will be perpendicular to the plane of AB. So angle between A and A cross B will be 90 and cos 90 is 0. Okay. Dot product में if cos theta is 90, theta is 90, then it will be. So angle between, you are telling angle between A cross B and A is 90 degree, है ना? चलो Yes, sir. डायग्राम में देखते हैं. Let's see. डायग्राम जो बनाया था ना, यहाँ पर वापस चलते हैं फर्स्ट डायग्राम में. यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है. C is the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स. तो C जो है, इट इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द B आल्सो और विद A आल्सो. जो C है देखिए, A के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और B के साथ भी. तो दिस C जो होगा, दिस C जो उसका रिजल्टेंट होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, or you can say A cross B is individually perpendicular to B also, perpendicular to A also, है ना? तो ये एक आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन है. जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आता है, either you call it A cross B or you call it C, it will be perpendicular to, it is perpendicular to the plane in which both the vectors are there. So it is individually perpendicular to vector A also, vector B also.
तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ए क्रॉस बी का ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, 90 डिग्री बन रहा है, और ए क्रॉस बी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, बिकॉज दोनों के साथ 90 बना रहा है, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, cos 90 इज ऑलवेज 0। तो दैट्स व्हाट इज दिस क्वेश्चन। अगर आपने समझ, देखो यहाँ पर अगर तुम्हें करना है वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखना है, तभी भी एन कैप लेना पड़ेगा, एन कैप एंड ए का जो है, तो 0 इज द राइट आंसर। कहाँ चला गया, यहाँ पर है। तो ए क्रॉस बी ए के साथ 90 बनाएगा, तो आंसर इज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, this was asked in JEE or NEET somewhere it was asked. Since angle between A cross B and vector A cross B, sorry, vector A का A cross B के साथ एंगल 90 आएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर A and A cross B is 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, ठीक है, एंड cos 90 is 0। जनरली ये क्वेश्चन क्लिक नहीं होता है, इसमें जब ऑप्शन दे देंगे यू गेट मोर कंफ्यूज, ऐसा कुछ ए स्क्वायर बी साइन थीटा ऐसा कुछ दे देंगे, और बी स्क्वायर ए कॉस थीटा लाइक दिस, एंड वन ऑप्शन विल बी 0। तो 0 इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। when we get 4 options then we get more confused, ऑप्शन नहीं है then things are easier। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं बी लिख दूं तब क्या आंसर होगा? इफ आई राइट बी, So still the same. yes, because it will make the angle with B also 90 degree, then also answer will be same. Okay. So this is important question. ठीक है, किसी को डाउट है तो स्टिल यू कैन आस्क। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। फार्मूला जो है ना, a डॉट b इज a b cos थीटा, a b cos थीटा। तो यहाँ पर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। So can you please Yeah. explain the question again? देखो व्हाट आई टोल्ड यू, एक मिनट, वो नहीं तो वो पीछे से वो डायग्राम को वापस लेके आते हैं, रुको। देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखो देखिए, A क्रॉस बी दिस अपवर्ड और A इज हियर, डॉट प्रोडक्ट है ना? तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा, cos 90 है, cos 90 becomes 0, तो होल थिंग्स बिकम 0। A is here और A क्रॉस B इज अपवर्ड, ये जिसको हम थोड़ी देर के लिए C मान सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे AC cos 90, इसको अगर C मान लो, A डॉट C, AC cos 90, तो ये 0 हो गया, बिकॉज A एंड C के बीच में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 विल मेक होल थिंग 0। तो डॉट प्रोडक्ट की हमने कंडीशन भी पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट इज 0 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो ऐसे एक कंडीशन पढ़ी थी, ax bx plus ay by।
तो 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0। ऑलराइट, और बी के साथ भी सेम थिंग आएगा, यहाँ भी बी के साथ भी 90 बनाना है। इफ आई मेक इट बी then also it will come 0. Answer will be 0 because again 90 degree with the B also. All right, तो आगे देखेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन, देखो दिस वाज क्वेश्चन इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। A cross B is equal to B cross A, then angle between them, angle between A and B, angle between A and B, क्या आंसर होगा इसका? If both are equal, बोलो what will be the answer? Pi by 2, pi by 4, pi by 6, pi, not possible. So many options are there now. Think about this question. Let it be no mark only. इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो। Can you read it properly? ये not possible है, यहाँ पे pi है, pi by 6, pi by 4, pi by 2. ठीक है, let it be no mark. Don't reply now. Okay. No problem. Pi. No answer, I'm not disclosing. Just first answer coming is pi. We'll discuss tomorrow. ठीक है, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ओके, सम पॉइंट्स देखते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। तो बोथ आर नॉट इक्वल है ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव, वी कैन नॉट कम्यूट है ना। बट अगर हमने माइनस कर दिया तो बोथ आर इक्वल, ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, दिस पॉइंट ऑलरेडी वी डिस्कस देयर आल्सो। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने अगर यहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्रॉस लगाया तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट a cross b, we can write, and plus a can be distributed to both b and c, so it is distributive. If required, we can do it, we can distribute it in problem solving. And a cross a will be how much? A cross a will be 0 because magnitude of first vector into magnitude of second vector into both vectors will be, if we represent by, if we write a cross a, मतलब both has to be equal vectors. Equal vectors means same direction. Same direction means theta 0. Theta 0 means whole thing will be 0. It will be 0 vector. So a cross a will be 0. Clear? तो इसमें कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, आई क्रॉस आई क्या होगा फिर? अच्छा, आई डॉट आई क्या था? हाउ मच वाज आई डॉट आई? आई कैप डॉट आई कैप 1. Now cross product I cross I will be 0. why 0? वो यूनिट वेक्टर है पर फिर भी वो वेक्टर ही है ना, तो उसके बीच में भी एंगल 0 ही होगा। Yes, तो both will be in similar to this point. जैसे ये point है उसी लॉजिक से ये magnitude of first vector into magnitude of second vector into sin 0
into n cap, the whole thing will become 0. So if both are similar, their cross product has to be 0. Similarly, j cross j will also be 0. J cross j will also be 0. K cross k cap will also be 0. Okay, no problem. These things are okay. It is related to point number 3. If both the vectors are identical, even if they are unit vector, their cross product will be 0 because angle will be 0 between them. तो यहाँ पर cross product में if both are identical, their cross product will be 0. But what about I cross j? Next point में my next point is I cross j will be how much? K cap. This is the important part. K cap is the first answer coming. Any other answer? इसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं इसको हटा दो पहले। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस आई जे और के इधर आएगा फिर, है ना, सॉरी। तो आई जे हो गया, ये 90 डिग्री है, तो इसका एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो इफ वी राइट magnitude of first vector is 1, magnitude of second vector is also 1, angle between them is 90 degree. Okay, anything else? और कुछ लिखना है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में? This much is okay. Do you remember the formula of cross product? बोलिए क्या था फार्मूला? क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था? A क्रॉस B1, AB sin थीटा, और क्या था? एन कैप। यहाँ भी एन कैप आ जाएगा, बट एन कैप जो है परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट, फिंगर इधर रखा, पाम इधर है, कर्लिंग दिस साइड, तो थंब विल कम दिस साइड, तो दिस विल बी के, एन विल बी, यहाँ पे देखो ये के कैप है, तो एन जो है हियर एन कैप विल बी के कैप, देयरफॉर आई क्रॉस जे विल बी के कैप। ठीक है, इस तरफ आ रहा है ना अपना थंब, के कैप की तरफ आ रहा है, तो आई क्रॉस जे विल बी के कैप। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? आई क्रॉस जे कैप विल बी के कैप। 1 नहीं लिखना है यहाँ पर, 0 भी नहीं, 1 भी नहीं है, इट इज ऑल टुगेदर कमिंग समथिंग एल्स। वेक्टर आना चाहिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आना चाहिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगी अलोंग द जेड एक्सिस होगी। सपोज ये एक्स है आपकी, तो अगर हमने एक्स एक्सिस इधर लिया, वाई इधर लिया, तो जेड इधर लेना पड़ता है हमें, तो बिकॉज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं उसको। कोऑर्डिनेट सिस्टम शुड बी राइट हैंडेड, आई क्रॉस जे शुड गिव, आई क्रॉस जे कैप शुड बी गिविंग यू के कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर जे इसका लिया प्रोडक्ट, जे क्रॉस के क्या आएगा? I. इधर फिंगर्स इधर रखो, palm should be this side, curling of finger, thumb इधर आ जाएगा, आई की तरफ आ जाएगा, और के क्रॉस कन्विंस नॉट, इसमें कन्विंस हुआ कि नहीं? सभी फिंगर्स ऊपर ले जाओ राइट हैंड की, palm should be this side, thumb will go this side, तो कौन सी डायरेक्शन है वो? along the x axis, that is I cap। अभी कौन सा बचा? के क्रॉस आई बचा है ना, अभी फिंगर्स इधर रखनी पड़ेंगी आपको ना, और फिंगर्स इधर है, palm should be this side, thumb will be going up now, G. जे कैप आ जाएगा। फॉरवर्ड सीक्वेंस में जाना, देखो आई एंड जे का के मिला फॉरवर्ड सीक्वेंस में, फिर नेक्स्ट जो है जे एंड के का आई मिला, और फॉरवर्ड गए के एंड आई का जे,
ऑन सिंस इट इज एंटी कम्यूटेटिव, अगर ये आपको k कैप मिला, अगर हमने साइड चेंज कर दी, j को पहले लिखा, देयरफॉर j क्रॉस i क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस k कैप होगा। हम साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हमने साइड चेंज की तो माइनस हो जाता है, a क्रॉस b को b क्रॉस a लिखा है तो माइनस करना पड़ता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर हमने k क्रॉस j किया तो माइनस i कैप हो जाएगा, इसमें भी i क्रॉस k कर दिया किया तो माइनस करना पड़ेगा अगर हमने साइड चेंज कर दी। ठीक है, कुछ बुक्स में साइक्लिक ऑर्डर ऐसे सिखाते हैं, देखो लेट्स सी, ऐसा कुछ साइक्लिक ऑर्डर में देखो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे गए, देखो जस्ट लेट मी मेक इट सम मोर बिग, देखो ऐसे यहाँ पे पहले देख लेते, फिर देन आई विल शो यू प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हमने लिखा आई जे के, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, इसका आई के जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इक्वल टू के कैप आ जाएगा। नेक्स्ट इसका किया, जे का इसकी के साथ किया तो इक्वल टू आई कैप आ जाएगा, और के का आई के साथ किया तो जे कैप आ जाएगा। लास्ट में दिख रहा है आपको, के का आई के साथ किया तो जे कैप आ गया। तो ये साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। क्लॉकवाइज गए तो प्लस मिलने वाला है, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो माइनस मिलने वाला है, ऐसा देखो। इफ यू फॉलो द एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये हमने क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो की, प्लस मिलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करो, के क्रॉस जे, देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे अगर हम तो माइनस मिलेगा ना। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आई लिखा है, ये जे लिखा है, और ये के। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो माइनस मिलेगा। देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस के विल गिव यू जे। आई क्रॉस के किधर लिखा हमने, आई क्रॉस के, ये देखो तो के, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हुआ तो माइनस के करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लगाना है, तो क्लॉकवाइज में प्लस लगाना है। ऐसे ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, जे क्रॉस, यहाँ देखो जे क्रॉस आई लिखा है तो इज इक्वल टू माइनस लगाना पड़ेगा, बाद में माइनस, यहाँ पे माइनस इंडिकेट किया, और ऐसे गए प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट दिस इज अगेन थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए एक और इजी मेथड होता है, अगर आपको सीक्वेंस नहीं लर्न करनी, ये सब नहीं लर्न करना है, ठीक है, बट आई रिक्वेस्ट टू एटलीस्ट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इफ यू डोंट वांट टू लर्न दिस एंड, और आपको ये नहीं लर्न करना है और ये भी लर्न नहीं करना है, तो एक तीसरा मेथड है, डिटरमिनेंट मेथड वी कॉल इट। व्हाट वी कॉल इट, डिटरमिनेंट मेथड, है ना। तो उसमें क्या होता है, सपोज मैं इफ आई आस्क यू, देखो ओके पहले ये देख लो, इसको नोट करो, देन आई विल टेल यू डिटरमिनेंट मेथड, दिस मच यू कैन सी। यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, रेड से माइनस लिखा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज में प्लस। लिखने का वो वैसे ही रहेगा, आई जे के, ये हमने ऐसे लिखा, बट इफ यू फॉलो द एंटी क्लॉकवाइज मेथड तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव का थर्ड जो है माइनस मिलेगा। इसमें फॉलो द क्लॉकवाइज मेथड, किसी भी टू कंसेक्यूटिव का थर्ड विल बी प्लस,
है ना, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये हमने फार्मूले से निकाले हैं। फॉरवर्ड सीक्वेंस में जा रहे हैं तो प्लस मिल रहा है सबका, आई जे के साथ के मिल रहा है, जे के साथ आई मिल रहा है ना, फॉरवर्ड सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं। बैकवर्ड सीक्वेंस है ऐसी, आई से के गए, के से जे गए, तो माइनस मिल रहा है इधर। ठीक है, दिस मच ओनली। कल टुमारो आई टीच यू डिटरमिनेंट मेथड। अगर आपको ये सीक्वेंस सपोज नहीं याद हो रही, तो देयर इज थर्ड मेथड टू फॉलो द डिटरमिनेंट मेथड। उसमें फिर सीक्वेंस लर्न करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये सिखाया ना मैंने, तो आपको जैसे मैं बोलूं कि फार्मूला बनाओ ऐसा, ए क्रॉस बी निकालो, तो फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे डॉट प्रोडक्ट में निकाला था वैसे करना पड़ेगा। फिर तुम्हें आपको फिर सीक्वेंस आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएंगे, और ये आई क्रॉस जे विल बी के कैप, है ना। ऐसे ही इसका आई क्रॉस के विल बी माइनस जे कैप, ऐसा कुछ आता जाएगा, तो बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, है ना। तो दैट आई विल टीच यू टुमारो, सो दैट फिर सीक्वेंस वगैरह तुम्हें नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा। तो विल डू इट टुमारो। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला, दूसरा फार्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी डन टुमारो, ठीक है। Okay, sir. That's all from my side. Any difficulty till now? No, sir. Okay. Tomorrow we'll complete this cross product, second formula using the determinant method. That's all. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. All right. Okay, all right.